Hello everyone, thank you so much for clicking on this video. This video is all about biofertilizers. As we all know that chemical fertilizers are actually degrading the quality of soil that we used to increase the crop yield. So there comes the term biofertilizers where we use microbes or living prokaryotic microbes or even eukaryotic to use them as fertilizers to increase the crop yield. So let's get started. But biofertilizer is a substance which contains living microorganisms which applied to seed, plant surfaces or soil colonizes to the rhizosphere or the interior region of the plant and promotes growth by increasing supply or availability of primary nutrients. So what they are saying that simply, as I already told you, that biofertilizer is a substance जो कि that is obtained from microbe, right? So where we apply that biofertilizer over seed or plant surface or even in soil. Now the one word comes is rhizosphere. Rhizosphere, what does it means? It means the area around the root, okay, which is inside the soil, where our rhizobium bacteria binds and undergoes biological nitrogen fixation, that is to convert atmospheric nitrogen into the inorganic form, that is ammonia, that is used by the plant from its root tips or even root nodules and use it as a nutrient source. So this is all about their functions. Biofertilizer and nutrients through their natural processes of like nitrogen fixation, as I already told in case of rhizobium, and soluble phosphorus stimulating plant growth through synthesis of growth promoting substances, right? So next move to what is biofertilizer. As I already told, it is a natural fertilizer that you can obtain from bacteria, algae and fungi. Bacteria and algae are prokaryotes while fungi is eukaryote, okay? So they help in biological nitrogen fixation. अगर बैक्टीरिया की बात करें तो आएगा हमारा जो राइजोबियम बैक्टीरिया. अगर फंजाई की बात करें तो उसमें आएगा माइकोराइजा फंजाई, जो कि जिसको हम फंगल रूट्स बोलते हैं, दैट हेल्प इन biological nitrogen fixation. So they help build up the soil microflora, thereby soil health. जो सॉइल के अंदर माइक्रोफ्लोरा प्रेजेंट होंगी या जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या कह सकते हैं जो सॉइल इनहेबिटिंग माइक्रोब्स होते हैं या वर्म्स होते हैं जिनको हम कह लेते हैं, तो उसे माइक्रोफ्लोरा कहते हैं. वो इंक्रीज होता है और उसके साथ सॉइल हेल्थ भी इंक्रीज होगी. दैट इज़ टू रिड्यूस सॉइल पोल्यूशन and also to increase the soil fertility, as we know in organic farming. So there are types of biofertilizers. There is a bacterial, fungal, algal, aquatic fawn and earthworms. As we know that vermicomposting practice as we do is involves the earthworms, so we use them as a biofertilizer. So next come is our bacteria. Bacteria is already told that the जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं, जैसे कि राइजोबियम हो गया, आइजोस्पाइरिलम हो गया, फिर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स जैसे कि एजोबैक्टर एक्सेट्रा. एल्गल बायोफर्टिलाइजर्स, ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया इन एसोसिएशन विद एजोला, एनाबेना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया. ये सभी क्या है, जीनस हैं. इनके आगे आप स्पीशीज लिख के एग्जाम्पल लिख सकते हो. सो फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया क्या होंगे, जो कि स्यूडोमोनास या बैसिलस मेगाटेरियम होंगे. और फंगल जो बायोफर्टिलाइजर एज ऑलरेडी टोल्ड कि वो माइकोराइजल फंजाई. वैम की फुल फॉर्म क्या है, वेसिकल एस्बस्क्यूलर विसल एस्बस्क्यूल माइकोराइजा. सो अर्थवर्म्स एज वी नो कि इसीनिया फेटिडा करके जो साइंटिफिक नेम होता है उस रेड वर्म का, वो डालते हैं. सो ये बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर्स के बारे में सारा बताया है कि इन माइक्रोब्स के अंदर एक यूनिक जीन होती है NIF जीन,
ठीक है, तो दो की कैपेबल होती है बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन। तो ये हमने बता दिया कि ये सिम्बायोटिकली भी और फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। और फिर ये एसोसिएशन करते हैं क्रोप प्लांट के साथ थ्रू फॉर्मिंग नोड्यूल्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि BGA के केस में होगा ये। तो the free living bacteria do not form any association but live freely and fix atmospheric nitrogen, right? नेक्स्ट कम सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स। ये राइजोबियम का आपको पता होगा, ऐसे लेग्यूम सा स्ट्रक्चर बन जाता है इसका, और ये नोड्यूल्स बनाते हैं रूट हेयर रीजन पे। तो कुछ इसेंशियल मिनरल्स हैं वो सप्लाई करेंगे, और इसके साथ ये हमने बता देना है कि कौन सी एग्जांपल जाएगी, कौन से प्लांट होते हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट्स जनरली होते हैं, वो बीन हो गया, पीस हो गए, ठीक है, ये एग्जांपल आ जाती है। ये बैक्टीरिया इन्होंने दो दिए हैं, जैसे कि राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम। नेक्स्ट दे एक्सप्लेन द सेम अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया, हाउ इट लुक्स इनसाइड माइक्रोस्कोप एंड under the in vivo conditions. Next come Isospirillum. If you want to explain the example, you can, that it inhabits both root cell as well as surrounding the roots. रहते ही roots में ही है, symbiotic association बना के रहते हैं, और ये डोमिनेंट सॉइल माइक्रोब की तरह एक्ट करते हैं। और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि सीरियल्स, मिलेट्स और ऑयल सीड्स हो गया, ठीक है, तो इन सब में ये एजोस्पाइरिलम एक्ट करता है। नेक्स्ट फ्रॉम फ्री लिविंग बैक्टीरिया। फ्री लिविंग बैक्टीरिया वी नो द एग्जांपल ऑफ एजोबैक्टम एंड क्लिप्सिला. So it is not associated with plant, they are independently growing, so they are biofertilizers which provide the required amount of nitrogen to the plant from soil. So the main function you can write in biofertilizers is they perform nitrogen fixation in both bacteria and in fungi and algae also, in case of blue green algae. Next come Azotobacter, that is also free living nitrogen fixing bacteria and occurring species in arable soils of India. And as we know that Azobactam is can synthesize growth promoting substances such as auxins or gibberellins. As we know, these both are growth regulators. Okay, so auxins, as we know, that they promote elongation of both stem and colliotile regions, and while the gibberellins, they promote the width growth, that is the lateral growth provide करता है। और कुछ vitamins भी होंगे, और ये वही बताया कि क्या क्या एग्जांपल दे सकते हो आप, इसको नोट डाउन कर सकते हो कि ये क्रॉप्स हैं, शुगर केन हो गया, कॉटन, विट, ठीक है, तो ये राइस मेज की एग्जांपल आ गई। एंड इट इम्प्रूव्स द सीड जर्मिनेशन एंड प्लांट ग्रोथ ऑल्सो। नेक्स्ट इज मास प्रोडक्शन। अगर हमें इंडस्ट्रियल स्केल पे इन बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन करानी है, तो उसके लिए हमको इनोकुलम चाहिए होगा, एज वी ऑलरेडी नो, जिसको हम जो है इनोकुलेट करेंगे अपने मीडिया में, कल्चर मीडिया में। तो जो शेकिंग कंडीशंस है वो ये रखी जाती है, और उसके बाद कहते हैं कि जो कल्चर ऑब्टेन हुआ फ्लास्क में, ठीक है, ये ऑप्टिमम कंडीशंस रखनी है, ये 4 से 5 दिन के लिए राइजोबियम रखना है। फिर ये अलग अलग बैक्टीरिया के अलग अलग आप कह सकते हो कि इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा उस मीडियम फ्लास्क के अंदर, जो स्टार्टर कल्चर बन जाएगा। फिर हमें पता है कि स्टार्टर कल्चर जो है उसको पहले सीड फर्मेंटर में डालते हैं और फिर उसको लार्ज फर्मेंटर में डालते हैं। तो ये एक बेसिक इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है। तो फिर हम अपना फर्मेंटेशन प्रोसेस रन करते हैं, और फिर जब हमें रिक्वायर्ड बायोमास मिल जाता है तो सेल काउंट ले लेते हैं। ये कुछ फ्लो चार्ट दिया है, उसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है इसमें। देखिए ये सब एक्सप्लेन किया है, कैसे कूलिंग करनी है, फिर उसको फर्मेंटर में लॉग फेज का हमने उसकी स्टडी करनी है, और इनोकुलम 1 से 2% होना चाहिए, और ब्रॉथ इज चेक्ड फॉर पॉपुलेशन ऑफ इनोकुलेटेड ऑर्गेनिजम्स। और फिर सेल को हार्वेस्ट कर लेते हैं जब हमें लगता है कि जो मीडिया है हमारा फर्मेंटर के अंदर वो विस्कस हो चुका है काफ़ी। कैरियर मटेरियल, जैसे कि आप देख सकते हैं, यूज़ ऑफ आइडियल कैरियर मटेरियल नेसेसिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी
बायो फर्टिलाइज़र, ठीक है। जैसे हम वर्मी कल्चर रन करते हैं, ठीक है, उसमें हमको रॉ मटेरियल क्या चाहिए, काउ डंग चाहिए, ऑर्गेनिक वेस्ट चाहिए, किचन वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। तो वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए, उसको हम कैरियर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब उसकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि चीप होना चाहिए, लोकली अवेलेबल, हाई ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, नो टॉक्सिक केमिकल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मोर देन 50% एंड ईजी टू प्रोसेस। नेक्स्ट क्रम प्रेपरेशन ऑफ इनोकुलेंट पैकेट्स, कि कैसे प्रेपरेशन करते हैं कैरियर मटेरियल को, हम जो है वो स्टरलाइज करके सारा उसको अपने बैग्स में फिलिंग करते हैं और उसको जो है बैक्टीरिया कल्चर ड्रॉन फ्रॉम द फर्मेंटर इज एडेड टू द स्टरलाइल कैरियर। जो हमारा कल्चर रन हो रहा होता है फर्मेंटर में से, उसमें से थोड़ा सैंपल लेके हम इस कैरियर में डालते हैं और फिर मिक्सिंग होती है और इनोकुलेंट पैकेट्स को हम पॉलीइथिलीन बैग्स में सील करके सप्लाई करते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ पॉलीथीन बैग्स, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या पॉलीथीन बैग्स की होनी चाहिए। उसके बाद आ गया वेसिकुलर आर्बेस्क्यूलर माइक्रोराइजा, ये मैंने बताया कि ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है बाय सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स के साथ, इसको फंगल रूट्स बोलते हैं। म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होती है फंगल माइसीलिया की और प्लांट रूट्स की। ये एक एंडोट्रॉफिज्म है, एंडोट्रॉफिक माइक्रोराइजा है, मतलब कि ये प्लांट के सेल के अंदर तक चला जाता है अपनी विसल्स और एस्पेस्क्यूल्स बनाने के लिए, मतलब जो नोड्यूल फॉर्मेशन या जो सेल मास बनाता है अपना, ठीक है। मतलब फंगल रूट्स को क्या मिलता है, शेल्टर मिलता है, और प्लांट रूट्स को क्या मिलता है इस रिलेशनशिप से, वो न्यूट्रिएंट्स और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उसका अपटेक इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम सॉइल वाया दीज बायो फर्टिलाइजर्स। सो वैम जो है न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र में हेल्प करता है, मेनली फॉस्फोरस, जिंक और सल्फर, ये बताना होता है। और ये कुछ हमने रोल बताया है उसका, वैम का क्या है और कैसे वो मॉइस्चर कितना लेवल होना चाहिए, और रेजिस्टेंट टू द सॉइल बॉर्न और रूट बॉर्न पैथोजेंस, नेमाटोड्स हो गए हमारे, और कई तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है वो हम देखते हैं। 7 टाइप्स के माइक्रोराइजा और डिफरेंट म्यूचुअलिज्म शोन करते हैं। दे ऑल्सो मोबिलाइज डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक कॉपर, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम and others like iron, okay. So morphology is here, you can see that these vessels are and asbescules are formed inside the cell, okay. So that is why they called as mycorrhiza or एंडोफाइटोटॉफ, जो इनसाइड जाके एक्सटर्नल हाइफे जो है अपने सेल के, प्लांट सेल के अंदर जाके अपनी जो ग्रोथ शो करता है इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स एंड एस्बस्क्यूल्स, ओके। सो मैकेनिज्म क्या है इनका एक्शन का, ये देख सकते हो कि इट पेनिट्रेट्स इन द रूट कॉर्टेक्स एंड स्प्रेड्स अराउंड द रूट्स ऑफ प्लांट, ओके। मास प्रोडक्शन वही है कि वैम आइसोलेट करेंगे, स्पोर्स को मिक्स करेंगे, स्टरलाइज करेंगे, मिक्स करेंगे विद स्टरलाइज सॉइल, और सॉइल को फिल करेंगे पॉट्स में, और होस्ट प्लांट को ट्रांसप्लांट करेंगे फिर पॉट्स में, और 3 से 4 महीने के लिए ग्रीन हाउस में उसको हम डिफरेंट ह्यूमिडिटी और लाइट कंडीशंस पे रखेंगे। और सॉइल इन द पॉट अलॉन्ग विद द रूट्स ऑफ द होस्ट प्लांट इज पेसरेटेड, ओके, ड्राइड टिल इट अटेन्स 5% मॉइस्चर एंड ड्राइड सॉइल इनोकुलेंट्स यूज फॉर फील्ड एप्लीकेशन। फिर उसको फील्ड में लेके जाते हैं। यूजेस क्या क्या हैं ये आप पढ़ सकते हैं। एल्गी को एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है, उसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। जैसे जो भी है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है उससे स्पेशलाइज सेल्स में होती है इनके अंदर, जैसे कि हेट्रोसाइस्ट हो गया, और कोई केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ एल्गी को इनोकुलेट करते हैं टू इंक्रीज द यील्ड डबल टू ट्रिपल टाइम्स। इसकी 100 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी एज अ बायो फर्टिलाइज़र एक्ट करती हैं। और सम ऑफ द एल्गल बायो फर्टिलाइजर्स जो एग्जांपल इन्होंने दी है, ये जो साइड पे डायग्राम बनी है ये ऑसिलेटोरिया की है, और कुछ एनाबेना की सेगमेंट्स हैं। ये बैक्टीरिया नॉस्टॉक की एग्जांपल हो गई। एजोला जो है हमारा ये भी एक एल्गी है, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ी है। तो ये टाइनी फ्रेश वाटर पे रहती है इन पोन्ड्स, डिचेस एंड राइस फील्ड्स में।
in all major rice growing countries including India, Thailand, Korea, Philippines, Brazil and West Africa. The nitrogen fixation work is accomplished by symbiotic relationship between the fern and BG. तो जो फर्न और इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी में रिलेशन होता है ये एनाबेनाजोला के थ्रू होता है. तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग वर्क है ये यही बैक्टीरिया करता है. और कौन कौन से मिनरल ऐड करता है? पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, ये सब ऐड करता है. और ये क्या है, क्या हमको रिक्वायरमेंट्स चाहिए टू अटेन एजोला एज बायोफर्टिलाइजर एप्लीकेशंस. मेथड क्या है कि ये सीड ट्रीटमेंट, रूट डिपिंग एंड सॉइल एप्लीकेशन. ओके, ये सीड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और मोस्ट इफ़ेक्टिव जो एप्लीकेशन है इनकी यही है कि जो सीड की जर्मिनेशन करवानी है उसको अनफेवरेबल कंडीशंस में उसको जर्मिनेट करवाना. ठीक है. रूट डिपिंग, application of isospirillum with paddy or vegetable plants. This method is needed. Okay. Soil application to increase its yield and nutrition qualities. Precautions क्या है कि कुछ बायोफर्टिलाइज़र पैकेट्स को ड्राई और कूल प्लेस पे रखना होता है. इनकी कुछ एक्सपायरी डेट्स होती हैं और हालांकि इसको जो है ये लिखा हुआ है कि बिफोर एक्सपायरी यूज़ करना है और इसको रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है कि जो भी एप्लीकेंट है जो भी इसको एज अ बायोफर्टिलाइज़र अप्लाई कर रहा है उसको मॉनिटर करना होता है लॉन्ग टाइम तक. और काफ़ी ज़्यादा बायोफर्टिलाइज़र जो हैं क्रॉप स्पेसिफिक होते हैं कि जैसे राइजोबियम है. ठीक है, तो वो अपने सिम्बायोटिक प्लांट के लिए, लेग्यूम्स के लिए स्पेसिफिक होगा. ऐसे ही जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी है वो और फर्न्स हैं. ठीक है, तो ये आपस में रिलेशनशिप में रहेंगे और जो एजोला इनकी फंक्शनिंग करेगा. ये हो गया. एडवांटेजेस आप कर सकते हो कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, सस्टेन सॉइल हेल्थ एंड सप्लीमेंट. ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ सप्लीमेंट कर सकते हैं. 20-30% ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इंक्रीज द ग्रेन यील्ड बाय 10-40% एंड डीकम्पोज प्लांट रेजिड्यूज एंड स्टेबलाइज द कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ऑफ द सॉइल. एज यू नो दैट दिस इज completely maintained in vermicomposting and improve texture, structure and water holding capacity of soil. This is very important. No adverse effect on plant growth and soil fertility because no side effects. Stimulate plant growth by secreting growth hormones like as we already discussed in case of that they secrete auxins and gibberellins by a VAM. So secrete the fungistatic and antibiotic like substances. So जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स यूज़ है वो कम होता है. सॉल्युबलाइज एंड मोबिलाइज न्यूट्रिएंट्स इको फ्रेंडली है. डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसकी एक्सपायरी डेट होती है और जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज करते हैं इसकी स्पेशल केयर देनी पड़ती है, ये मैंने बताया. और ये अदर ऑर्गेनिजम्स में कंटेमिनेट हो सकता है. और अगर सॉइल ज़्यादा गर्म होगी या ड्राई होगी तो बायोफर्टिलाइजर्स की इफ़ेक्टिवनेस कम होती जाती है. और इफ़ अदर ऑर्गेनिज्म कंटेमिनेट द कैरियर मीडियम और इफ़ ग्रोज यूज द रॉन्ग स्ट्रेन दे आर नॉट एज इफेक्टिव, मीन्स दे आर क्रॉप स्पेसिफिक biofertilizer action. So with this note, thank you so much for watching this video till end. If you like this video, like, share and subscribe. Thank you so much.